Hello students, today we are going to study about conjunctions. Conjunctions are words that join two or more words, phrases, clauses or sentences. These are known as conjunctions. जो words दो sentences को या phrases को या फिर clauses या फिर sentences को आपस में join करता है वो क्या कहलाता है? कंजक्शंस. ओके, कंजक्शंस और प्रीपोजिशंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कंजक्शन जो है वो दो अलग अलग सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को आपस में जॉइन करता है. बट प्रीपोजिशन क्या होता है? वो रिलेशन बताता है नाउन या प्रोनाउन का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन बिटवीन कंजक्शंस एंड प्रीपोजिशंस. हियर इज अ एग्जांपल ऑफ कंजक्शन. झिलमिल is a sincere student. बादल is a sincere student too. I have read two sentences. दो sentences मैंने पढ़े कि झिलमिल एक sincere student है और बादल जो है वो भी एक sincere student है. तो इन दोनों sentences को अगर मैं join करके एक sentence बनाऊँ तो मैं कैसे लिखूँगी? झिलमिल and बादल are sincere students. So the word and who joined Jhilmil and Badal is known as conjunction. Okay. Jhilmil reads only mysterious. Badal is fond of historical fiction. So if I will join both the sentence, it would be like Jhilmil reads only mysterious while Badal is fond of historical fiction. So the word while is here used as an conjunction. So let's see more about conjunctions. As we know that conjunctions are of three types. They are coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. Got it? So the main is coordinating conjunction. So when we are talking about coordinating conjunction, we can recognize each and every verse which is used in that by the famous acronym that is fanboys. Fanboys stand for, or you can say fanboys as a FANBOYS. Okay, so F stands for, and, nor, but, or, yet, so. So this is the full form of fanboys. So let's see some examples of this fanboys. For, we listened eagerly, for he brought news of our families. Example of and, she didn't speak to anyone and nobody spoke to her. Example of nor, I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. But, example of but, they rushed to the hospital, but they were too late. Example of or, I will go shopping or I will go camping. Example of yet, Kelly was a convicted criminal, yet many people admired him. So let's see the example of so. We wanted to play football, so we divided ourselves into two teams. Okay, so these are some coordinating conjunction words which we can say that clauses that are joined by a coordinating conjunction are known as coordinate clauses. जो वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आपस में मिलाते हैं या जो क्लॉजेस को दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. Okay, these clauses express idea of equal importance and thus can stand independently. हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्लॉजेस है कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जो है ये हमेशा इंडिपेंडेंट ही खड़ा रहता है. इसको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है. और एक चीज़ और आपने हर एक एग्जाम्पल में देखा होगा जो मैंने अभी आपको फैन बॉयज़ के एग्जाम्पल दिए
कि जब मैं दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन कर रही हूँ तो मैंने जैसे ही फर्स्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट किया, जैसे फॉर का मैंने किया वी लिसन ईगरली, ईगरली के बाद मैंने एक कॉमन लगाया है, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद मैंने कॉमन लगाया है, फिर मैंने कंजक्शन वर्ड का यूज़ किया है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, और उसके बाद फिर मैंने एक और इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखा है, ही ब्रॉट न्यूज़ फॉर आवर फैमिलीज़। ओके, तो ये है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जो फॉर्मूला, जो आप कह सकते हो कि पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, फिर कंजक्शन होगा, फिर उसके बाद वापस से इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और जो फर्स्ट वाला हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाएंगे उसके बाद हम कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लॉजेस क्या होता है ये आपको अच्छे से मालूम है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होना ज़रूरी होता है, तो वो हमारा कहलाता है क्लॉज। तो आई थिंक this is remembered by you all. Now see one more example. Vikram climbed onto the board and dived into the pool. Okay, विक्रम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और क्लाइंब्ड क्या है, हमारा वर्ब है। तो एक क्लॉजेस में वर्ब का, सब्जेक्ट का और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, और उसको कौन से कंजक्शन वर्ड ने आपस में जॉइन किया है, डेट इज़ एंड. So these clauses usually use coordinating conjunctions such as for, and, nor, but, or, yet, and so, or you can say fanboys, to show similarity, alternative reasons, and contrast. Rahman has suggested attending a talk about culture, and Vidita has suggested attending a talk about ग्लोबलाइजेशन. ये बहुत ही सिमिलर सेंटेंस थे, ठीक है, बट इनको कौन से वर्ड ने आपस में ज्वाइन किया है, वो है एंड. एक और एग्जांपल, आप ऑल्टरनेटिव एक एग्जांपल देख सकते हो कि वंदना कुड हैव यूज्ड ऑयल पेंट्स और शी कुड हैव यूज्ड वाटर कलर्स. ठीक है, एक फॉर का एग्जांपल और हम देखते हैं, रीज़न देने के लिए यूज़ होता है फॉर का. फरीदा विल बी taking dance classes for she plans to participate in the annual inter class dance competition. तो for का हम यूज़ किस लिए करते हैं, रीज़न देने के लिए. Now a clause which begins with a subordinating conjunction such as after, although, as, because, while, when, since, and unless is called a subordinate clause. The subordinate clause depends on the main clause for meaning and cannot stand alone as an independent sentences. ठीक है, subordinate clause जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि subordinate clause क्या है, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं लेता है, इसको ये किस पे डिपेंड करता है, मेन क्लॉज पे. ठीक है, और जो वर्ड्स मेनली इसके अंदर यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, ऑल दैट वर्ड्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट कम्स अंडर subordinate clause. Okay, the most common subordinate categories are time, concession और comparison, condition, reason और place. तो जो मेनली वर्ड्स जो इनके अंडर में आते हैं, टाइम के अंडर में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो हैं आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, अनटिल या फिर टिल, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर और व्हाइल. दिस कम्स अंडर टाइम. जब हम किसी टाइम की बात करते हैं, सेंटेंस में टाइम की बात हो रही हो, तब हम मेनली ये वाले जो वर्ड्स हैं वो एज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, कंसेशन में हम यूज़ करते हैं ऑल्दो, दो या फिर इवन दो, इन वर्ड्स का. अब बात आती है कंपैरिजन की. जब हम कंपेयर करते हैं किसी को, तब हम कौन सा सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करते हैं, वेदर, वेयर एज मच एज, देन, rather than. Now talk about condition. So the words comes under it is if, provided that, in case, only if, unless या फिर assuming that. Got it?
Now comes under reason. The words which comes under reason are as, in order that, since, because, so that, or you can see the words which comes under place are where or wherever. All these words are commonly used in the subordinating clauses. Okay, got it this much? So let's see some more examples. Since Vikram is a good swimmer, he experiments with different strokes. So sometimes what we will do, we will use the subordinate clause in the very beginning of our sentences also. Okay, so let's see one more example. Unless the student has prior permission, she or he cannot take leave. This comes under condition. ठीक है, तो कुछ ऐसे sentences भी होते हैं जिसमें जो कंजक्शन वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ होता है. तो हमें जब हम सबसे पहले यूज़ करते हैं कंजक्शन वर्ड का, तो उसके जस्ट बाद हम डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर हम कॉमा लगा करके इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम कंजक्शन वर्ड सबसे पहले यूज़ करते हैं तो वो अपने आप ही डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट हो जाता है. अनलेस द स्टूडेंट हैज़ प्रियर इन्फॉर्मेशन और यू कैन से परमिशन. जब तक स्टूडेंट के पास प्रियर परमिशन नहीं है, ही और शी कैन नॉट टेक लीव, वो लीव नहीं ले सकते. तो परमिशन के बाद हमने कॉमन लगा है और उसके बाद ही और शी कैन नॉट टेक लीव, हमारा जो मेन क्लॉज है या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हमने यूज़ किया है. गॉट इट? व्हेन साइना नेहवाल केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट, कॉमा, द जर्नलिस्ट रश टूवर्ड्स हर. गॉट इट? दिस कम्स अंडर टाइम, क्योंकि व्हेन का यूज़ हम कब करते हैं, जब टाइम की कंडीशन हो, उस टाइम में. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Since Diwali is next week, comma, we made candles at home. ये क्या है? Since का वर्ड हमने कहा किया यहाँ पे cause को दिखाने के लिए, मतलब कोई कारण दिखाने के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, wherever Minky goes, her cat follows her. ये क्या जगह दिखा रहा है कि जहाँ जहाँ मिंकी जाती है वहाँ पे उसकी कैट जो है उसको फॉलो करती है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ subordinating clauses. I think you got it. As correlative clauses are not in our course, but then also just I want to give you a brief descriptions that the words which we can use in correlative clauses are both and. जब हम दो वर्ड्स का एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना, उसको कोरिलेटिव क्लॉजेस कहते हैं. ठीक है, या फिर कंजक्शंस, जो दो कंजक्शंस एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल बोथ और एंड, जैसे कि द कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो हमने इस सेंटेंस में दो वर्ड्स का, दो कंजक्शंस का एक साथ यूज़ हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोरिलेटिव कंजक्शंस. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. सम मोर वर्ड्स आर ईदर और. आई विल ईट ईदर कैरेट or peas for dinner. Okay, so these are some examples: neither nor, whether or, not only, but also, such that, scarcely, when, no sooner than. So these are some common words which we can use in our correlative sentences, or you can say correlative clauses. So I think you understood conjunctions very well. Thank you. Stay safe. Stay home.